गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन से आज फिर से मुखातिब हूँ आप सबसे। आज आपके समक्ष पूज्य मुनीब साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्तवाणी के वचन रखने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी भाई बहन इन वचनों को बड़े गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे और आज कल से आगे। वचन नंबर 475। बेहतर यह है कि आदमी हर वक्त यही सोचता रहे कि सुबह को तो हमने चले ही जाना है, रात को जो कुछ भजन होता है वो कर लें, फिर दूसरे दिन को ये सोचें कि रात को तो मर ही जाना है। हर वक्त सतगुरु को याद करता रहे, फिर रात को ये सोचे कि सुबह को मर ही जाना है, इसलिए रात को खूब दब के भजन सिमरन करे। इसी तरह सोचता रहे और सतगुरु की तरफ ख्याल रखे। वचन नंबर 476। भजन मंडली का मुखी शिवदयाल को मुकर्रर किया है क्योंकि वो अनमोल वचन सुनाता है। वचन नंबर 477। देसराज के पास सच्चे पातशाह निरंकार की चिट्ठी आई। बरखुरदार देसराज राधा स्वामी, प्रेम पत्र तुम्हारा पहुंचा। अभी मेरा सिरसा आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। जब तुम मन को एकाग्र प्रेम प्यार से सिमरन भजन करोगे तो लज्जत आनी शुरू हो जाएगी। ये कमाई की चीज़ है, जितनी मेहनत ज़्यादा करोगे उतना ही जल्दी काम बनेगा। तुम नेम और प्रेम से सिमरन भजन करते रहो, वो मालिक दया करेंगे। वचन नंबर 478। ओ एक जागृत रंग विच जाग उठता है जो अति रस ते मस्ती लान भरिया है। यह एक अके अवस्था है। गुरु प्रेम तो सुन्ने हिरदे इस अमर दी चाट नूं की जानन। प्रेम दी बलदी अग विच प्रेमी दा सब कुछ भस्म हो जाता है। उसके असह दुख नूं ना जर सकन करके उस दुनिया नूं होका ते दुहाइयां देंदा है कि प्रेम तो दूर रहो। कोठे ते चढ़ देवा होका, इश्क लिहाजों कोई न लोका। जेकर मैं यह जानदी प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा फेरदी प्रीत करियो न कोए। जिस ते तन नूं लगे ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਜਰ ਵਿੱਚ ਝੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਮਲਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਤਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕਿਆ ਮਨੋਹਰ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਕ ਆਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਮਰੇਂਦੇ ਤਾਨੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਵੇਦਨ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਬੇਗਾਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਟ ਅਮਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸੋਈ ਅਮਰ ਪਛਾਣੇ। ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਜੋ ਚੜਿਆ ਸੋ ਜਾਣੇ। ਇਸ਼ਕ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਕੈਸੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਮਰੇਂਦੇ ਤਾਨੇ। ਆਤਸ਼ ਇਸ਼ਕ ਫਿਰਾਕ ਤੇਰੇ ਨੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਾੜੇ ਕੋਲੋਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂ ਦੁਹਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਇਸ਼ਕ ਅਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਹੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਮਰੇਂਦੇ ਤਾਨੇ। ਹਿਜਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਝੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕਮਲੀ ਨਾਉ ਸਦਾਇਆ। ਸੁਮਨ ਬੁਕਵਨ ਉਦਿਅਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਲੰਘਾਇਆ। ਕਰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਦੀ ਸਾਈਆਂ, ਨਾ ਕਰ ਜੋਰ ਧਿੰਗਾਣੇ। ਇਸ਼ਕ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਕਹੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਮਰੇਂਦੇ ਤਾਨੇ। ਇਸ਼ਕ ਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹੋ ਕੀਤੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ। ਇਸ਼ਕ ਚੁਆਤੀ ਲਾਈ ਛਾਤੀ ਫੇਰ ਨਾ ਝਾਤੀ ਪਾਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪ ਛੁਪ ਰੋਵਾਂ ਕਰ ਕਰ ਲੱਖ ਬਹਾਨੇ। ਇਸ਼ਕ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਕਹੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਮਰੇਂਦੇ ਤਾਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਭੜਕਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਸ ਭਰੀ ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਹ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਗੌਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫਨਾਫਿਲ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਚਰਜ ਹਾਲਤ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਬ ਦੀ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਫਸਾਨੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀ ਜਾਣਨ। ਬਚਨ ਨੰਬਰ 479। ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪਾਵਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪਾਵਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪਾਵਣ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਝਲਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰੋ। ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਰੋਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਵੇਵਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਮਕਣਾ, ਕਦੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਕਦੀ ਉਸ ਦਾ ਫਟਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਮੂਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਾਵਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਨੰਬਰ 480। चिट्ठी जो सतगुरु महाराज को लिखी। तन 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 मेरा सावन शाह साईं निरंकार, सच्चा वाहिगुरु गरीब निवाज के आगे अर्ज है और बेनती गुनाहगार मस्ताना की। जो कृष्ण के भक्त हैं और जो हनुमान के भक्त हैं, वो जो राम के भक्त हैं, हर एक अपने भक्तों की रक्षा किया। वह अपने इष्ट के सिवा सिमरन और पूजा न की। उन्होंने भी मेरा सावन शाह निरंकार समर्थ परमेश्वर का रूप मस्ताना बलूचिस्तानी का सच्चा साहिब इष्ट तुमसे बिना कोई इस मैदान में नज़र नहीं आता। तुम्हारे बिना मेरे लिए सब मर गए। वाकई ये बात ठीक निकली। और मस्ताना का जब दीन दुनिया, खुशी, तन दौलत, कारोबार, बाल बच्चे शाह सावन शाह निरंकार को बनाकर बैठा, तो अभी और रक्षा कौन कर सकता है। ये मुश्किल और औखी काटी जो इस देह में छुपा बैठा था, तुम्हारे से बिना कोई नज़र नहीं आता। बचाने वाला जिसने त्रिलोकी को और शिव, ब्रह्मा, विष्णु को अपने नीचे दबा कर बैठा है और बिना सावन शाह शब्द वाला डंडा किसी को नहीं मानता। एक एक मिनट में करोड़ों करोड़ों गालियाँ, गुनाह और बुराइयाँ और बदमाशियाँ फिर एक मिनट में ही खाली नहीं छोड़ता और खाना और सोना बताता रहता है और हरगिज़ और कोई मुश्किल नहीं टाल सकता। बहादुर सावन शाह जो आदमी का चोला पाकर आया है, उसने ये झगड़ा निबेड़ कर रूह को ले गया है। जिस किसी को जीते जी मार कर 10वें द्वार ले गया। देहतारी सतगुरु सावन शाह निरंकार कभी न सुना कानों से कि सतगुरु से बिना इस मैदान में छुड़ावे। बुल्ले शाह बोला है कि शाह इनायत कीता पार। सो मस्ताना एक गुनाहगार सावन शाह कर देगा पार और कई तू भक्त अपने पार कर दिया है। अभी पता लगा कि नाम लेके सारे हम बड़ी चाह और प्रेम से लेते हैं, तो फिर सावन शाह का रूप जो शब्द या नाम उनके नज़दीक क्यों नहीं आता। तो वाकई ऐसी बला अंदर बैठी है कि करोड़ों लाखों को बाहर ही बाहर रखा और बेफजूल उमरिया गुजार कर चले गए। ये तसल्ली अभी दिल को आई कि बिना मुर्शद के इश्क और प्रेम के बिना एक कदम अंदर नहीं जा सकता। चाहे करोड़ साल नाम जपता रहे या राधा स्वामी करता रहे, हरगिज़ ये बला अंदर कदम उठाने नहीं देगी। सो मेरा मुर्शद मिठा, तू गरीब निवाज है,
लोगों के वास्ते आदमी, मस्ताने के वास्ते सच्चा वाहिगुरु। अभी इश्क लगा के और प्रेम दे के निभाना तुमको पड़ेगा कि तुम समर्थ हो। ये नंगा करने को पीछे पड़ा है। इसका जवाब भेज कि किस तरह गुजरेगी, किस तरह ये किला फतेह होगा। आगे भी एक लिफाफा चरणों में भेजा था तो इस दुख के बारे में लिखा था। अभी जिस तरह समझो बेड़ा पार कर दो, तो खूब अपने मुर्शद का जस कीर्तन करता फिरा। ये कानून है कि हर एक बालके ने अपने मुर्शद का जस दुनिया में किया है। सो तुमको तो जस दरकार नहीं, पर इस बालके को तो दरकार है, क्योंकि बुल्ले शाह, बाहू और दीवान हाफिज ने भी अपने मुर्शद का जस किया है। सो मस्ताना की ये आस भी पूरी कर दे। जैसे बलूचिस्तान में गाया, ऐसे हिंदुस्तान में भी गावा। कई बंद से जेल से सावन शाह निरंकार ने छुड़ा दिया और एक मस्ताने को भी छुड़ा दे। मोटर का आवाज़ उधर से आता है तो तवज्जो तुम्हारे रास्ते के निहारते हैं कि हमारा सावन शाह निरंकार का मोटर आया है। वचन नंबर 481। बलूचिस्तान से चौधरी साहब की चिट्ठी आई, तारीख 27 जनवरी 1948। पूज्य मस्ताना जी साहब, राधा स्वामी, दासन दास, गुनागार, नौकर रेवत राम की वाचनी। कार्ड एक आपका पहुंचा। आपने लिखा कि जल्दी रवाना होकर आएं, सो अभी रास्ते में घबराहट है, रास्ता नहीं मिल सकता। जिस रास्ते से आप लिखें तो हम उस रास्ते से रवाना होकर आएं। हम इधर राजी खुशी हैं। इस खत का जवाब जल्दी देना कि किस रास्ते से होकर आएं। हम आने के वास्ते तैयार हैं। आप अपनी नज़र मेहर गुनाहगारों पर हरदम रखें। राधा स्वामी सारी संगत की वाचनी, रेवतमल वल्द मोटूवल की वाचनी, अपनी मेहर नज़र करनी। राधा स्वामी नेकीराम, गोविंदराम, लाला करमचंद को देना। इस खत का जवाब जल्दी देना। जिस रास्ते से आप हुक्म करें तो हम आने के लिए तैयार हैं। राधा स्वामी मिट्ठामल वल्द उत्तूमल की वाचनी, राधा स्वामी टिक्कामल वल्द आरतमल की वाचनी, राधा स्वामी लुड्डनमल वल्द गुलामल की वाचनी। वचन नंबर 482। बलूचिस्तान से चिट्ठी मीर साहब अहमद खां की। मेरे दोस्त मस्ताना साहब, सदा खुश रहो। हम सब खुश हैं। उम्मीद है कि आप भी खुश होंगे। बहुत मुद्दत से आपका ख़त नहीं आया, क्या वजह है? हमको फ़िक्र बहुत होता है, इसलिए मेहरबानी करके अपनी खैरियत का हाल जल्दी रवाना करें ताकि तसल्ली हो जाए। आपकी खातिर रेवत राम फ़कीर को डेरा के लिए 2 दरख्त जम्मू के, जो सारे बाग में ऐसे जम्मू न होंगे, जो शाही महलात के लायक थे, आप हर माह में 1-2 खत रवाना किया करें। बाकी मेरे लिए एक अच्छी कीमती लोई भेजना। आपकी वालदा बीबी साहबा, छोटी बीबी साहबा और अब्दुल मजीद, रईस, पावल मिस्त्री, अहमद और दरबार के खिदमतकारान की बहुत बहुत सलाम। वचन नंबर 483। सच्चे पातशाह की चिट्ठी आई, तारीख 31 जनवरी 1948। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी जी सहाय। बरखुरदार मस्ताना राधा स्वामी, प्रेम पत्र तुम्हारा पहुंचा। पढ़कर अहवाल मालूम हुआ। तुमने जो कुछ भी तहरीर किया है उसको अपने अंदर रखो, बाहर किसी पर भी जाहिर मत करो। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ कि तुम भजन सिमरन प्रेम और प्यार से करते हो। मस्ताना सब कुछ जो कुछ तुम अंदर से देखते हो उसको अपने अंदर ही जज्ब करो। ये किसी को बताने या कहने का काम नहीं है। किसी पर जाहिर करने से अंदरूनी तरक्की बंद हो जाती है। इस वास्ते तुम प्रेम प्यार से भजन सिमरन करते रहो और अपना असली अंदरूनी राज किसी पर जाहिर ना करो, फिर तुमसे बातें करेंगे। फ़िलहाल मैं बीमार हूँ। मैं तुम्हारे प्रेम की कदर करता हूँ। करमचंद व सब सत्संगियों को मेरा राधा स्वामी कह देना। हस तरफ सावन सिंह। वचन नंबर 484। गंगाराम प्रेमी का वचन है कि जब डिप्टी हर नारायण सच्चे पातशाह जी के सेक्रेटरी ने चोला छोड़ने से पहले
महाराज से अर्ज की कि दर्शन दो, तो महाराज जी ने कहा कि अंतर ध्यान दो और सतगुरु को पकड़ो, वो साथ तुम्हें लेकर जाएगा। वचन नंबर 485। सीताराम महात्मा के मुख वाक। साध संगत मेरे को अंदर से मदद देती है और बाहर से तक्के देती है। वो आज मेरे साथ साध संगत ने नरमाई की है तो दिल की बहुत सफाई हुई है। साध संगत की सेवा करने से सीताराम महात्मा की कदर घटती है तो घटने दे। सीताराम महात्मा ने सारी उम्र में बुरे से बुरे जो कर्म किए हैं, साध संगत और साध संगत का प्यारा सतगुरु सीताराम पापी को, गुनाहगार को बख्शे। जो सीताराम महात्मा को इत्थे खुशी होती है वो बाहर नहीं मिलती, और खुशी साध संगत के संग से मिलती है। वचन नंबर 486। तन तन सतगुरु सावन शाह निरंकार के सच्चे प्यारे वजीर आज़म मस्ताना जी, आपके चरणों में बेनती है और अर्ज़ करता है कि जब से भजन मंडली या साध संगत से निकाला गया हूँ तब से भजन में बरकत नहीं हुई है, और बारंबार ख्याल आता है कि कैसे करें, और भजन प्रेम से नहीं होता, और क्या बेनसीब हुआ हूँ कि मुझको साध संगत की सेवा और सोहबत नसीब नहीं होती। और मस्ताना, आप सच्चे परोपकारी हैं, क्योंकि आप सच्चे पातशाह का भजन सिमरन जिस बड़े प्रेम से और हर वक्त करते हैं, और मुझ पापी गुनाहगार को भी भजन मंडली का संग बख्शो, यानी साध संगत का संग बख्शो। और साध संगत करने से प्रेम बढ़ता है, और प्रेम से ही भजन सिमरन बढ़ता है। आप सच्चे परोपकारी हो, सतगुरु का भजन सिमरन और जस बड़े प्रेम से करते हो। मुझको भी सतगुरु का भजन सिमरन और प्रेम आपके संग से होगा। किताबों में भी जगह जगह यही लिखा है कि पूरे सतगुरु के बालके के संग से बगैर भजन सिमरन नहीं बन सकता, क्योंकि कुटुंब तो कुसुम में दाखिल है। इस वास्ते मुझ पापी गुनाहगार को अपना संग बख्शो, क्योंकि आप पर सतगुरु की दया मेहर और बख्शिश है। किस दर जावां, किसनू हाल सुनावां, कोई दर्दी नहीं सेवा तेरे और सतगुरु के। बड़े बड़े उधरे उस संगा, गुरमुख है उन सब से चंगा। गुरमुख की गति सबसे भारी, गुरमुख कोटन जीव उबारी। इस वास्ते मस्ताना जी, आप गुरमुख हो, आपके बगैर मेरा भजन सिमरन नहीं बन सकता। ये साध संगत की सोबत का असर था कि सारी सारी रात जागते थे। घर पर तो पांचों चोर घेर लेते हैं और भजन पर बैठने नहीं देते। घंटा भी नहीं बैठा जाता, कोई न कोई बहाना करके हटा देते हैं। मैं बड़ा दुखिया हूँ, दुखिया की पुकार सुन। मस्ताना जी, आपके बगैर कौन चोरों को मार सकता है। हमारी तो बेनती और अर्ज कर देना ही बस है। और आप सतगुरु रूप हो, और आपके सोहबत और संग करने से भजन सिमरन करने का डर हृदय में बैठेगा। आपके संग से डर से मन ठहरता था। लगी है प्यास सतगुरु के जस कीर्तन की, मुझे मेहर करके मस्ताना जी के चरणों में अपने लगा लो। मेरा मन अच्छी अच्छी चीज़ें मांगता है, लेकिन साध संगत बगैर मन काबू नहीं आता। आप अपने सतगुरु के दया मेहर से अपने चरणों में लगा लो। बारंबार यही बेनती है, करो मंजूर मस्ताना जी। आप वास्ते गल कोई औखी नहीं है। न्यामत राम पापी गुनाहगार। वचन नंबर 487। चिट्ठी सच्चे पातशाह की आई, तारीख 5 फरवरी 1948। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी जी सहाय। अजीज़म मस्ताना राधा स्वामी, प्रेम पत्र तुम्हारा पहुंचा, पढ़कर अहवाल मुर्तज़ा से आगाही हुई। तुम्हारे पहले ख़त का जवाब तुमको दे दिया था। उम्मीद है कि मिल गया होगा। मैं बीमार हूँ, जब मैं तंदुरुस्त हो जाऊँगा तो तुम्हारे साथ खुली बातें करूँगा। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। तुम प्रेम प्यार से भजन सिमरन करते रहो। जो कुछ भी तुमने तहरीर किया है, ये सब बाबा जी की दया मेहर से ही है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। करमचंद व सब सत्संगियों को मेरा राधा स्वामी कह दे में। अस तरफ सावन सिंह। वचन नंबर 488।
राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी जी सहाय। तारीख 9 फरवरी 1948। बरखुरदार मस्ताना जी। हजूर स्वामी जी महाराज की दया महर पहुँचे। प्रेम पत्र तुम्हारा आया, चौधरी पीर को लिख दो कि जब रास्ते खुल जाएंगे फिर बड़ी खुशी से आना। उस वक्त फिर अंदर की बातें करेंगे, अभी ना आना। आप 2 दिन के लिए दर्शन करने के लिए आ जाएं। सबको ताकीद करें कि इस दुनिया से साथ जाने वाली सिर्फ दौलत, सिर्फ भजन सिमरन है। इसलिए भजन सिमरन नित्य नेम और प्रेम से करते रहें। अज तरफ सावन सिंह। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर जमनेश साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्त वाणी के वचन आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और मेरी दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।